السلام علیکم، میں ہوں اسما نواز اور آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہی رہتے ہیں جس کا نام ہے بیٹھک. اور رات کی اس پہر دوبارہ ہمارے دوستوں کی بیٹھک تھی تو ہم نے سوچا کہ جو ملکی مسائل ہیں ان پہ بات کی جائے. جو کہ ہمارا شوگر میلہ بھی چلتا رہتا ہے لیکن ہم اس میں کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں. آج کل ایک لفظ بہت زیادہ زبان عام ہوا ہوا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں ڈیجیٹل دہشت گردی. اب یہ کیا ہے اور یہ کس طرح سے پھیل رہی ہے، اس کا روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے، کیا حکومت اقدامات لے رہی ہے، اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اصغر چودھری صاحب اور امجد قریشی صاحب. کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا سے کافی عرصے سے لنک ہے اور اپنا یوٹیوب چینل اور پلیٹ فارم بھی استعمال کریں، تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ ایک دم سے سوشل میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ ڈیجیٹل دہشت گرد کیسے ہو گئے. السلام علیکم جی. السلام، بہت شکریہ اسما. تو سوال جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ نہیں، جو یہ نئی اصطلاح آئی ہے ڈیجیٹل دہشت گردی کی، تو بالکل یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کے مرتکب ہو رہے ہیں. تھوڑا سا چونکہ یہ بڑا سنجیدہ موضوع ہے اور ہماری یہ ویسے بیٹھک جو ہوتی ہے یہ ہنسی مذاق والی ہوتی ہے. اتفاق سے آج آپ سنجیدہ موضوع لے کر آ گئی ہیں تو سنجیدگی کا تھوڑا مظاہرہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر کوئی سوشل میڈیا سے ریلیٹ ہے. لوگوں میں یہ بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا ہم کس طرح کی چیزیں شیئر کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بعد کوئی مسائل بالکل. یہ میں اسی جانب آ رہا ہوں. میں سب سے بڑا حیران ہوں کہ امجد اشرف قریشی صاحب کو آج میں سنجیدہ کیسے رکھوں گا. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے $100 ملین کا. دیکھیں، یہ جو آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے نا ڈیجیٹل سی، ذرا تھوڑی سی میں تشریح اس کی کر دوں. جب آپ فیس بک یوز کرتے ہیں، آپ انسٹا یوز کرتے ہیں، آپ ٹویٹر کے اوپر جاتے ہیں، آپ اسی طرح کا کوئی اور بھی ٹول استعمال کرتے ہیں اور آپ خاموشی سے ایک پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو دیکھیں ایک جو جرنلسٹ ہے نا، جرنلسٹ کو یہ پتہ ہے کہ جو میں لفظ لکھ رہا ہوں وہ الفاظ کیا ہیں اور ان الفاظ کا مفہوم کیا ہے. بدقسمتی سے مدر پیدر ذات یہاں پر آپ کا سوشل میڈیا ہے. آپ سر جائیں نا، جا کے ذرا دبئی میں کر کے دکھا دیں مجھے، کوئی ایک سنگل پوسٹ کر کے دکھا دیں دبئی میں. اتنا بڑا پیچھے کرائسس آیا وہاں پر، کلاؤڈ برسٹ جب ہوا بارشوں کا، کوئی سنگل نیگیٹو پوسٹ مجھے دکھا دیں. ذرا سی آپ بارش ہوتی ہے آپ وہ لے کے پہنچ جاتے ہیں کبھی کراچی کے کسی گندے نالے کے اوپر، لاہور کے یا اسلام آباد کے اوپر. پھر جو سب سے زیادہ سنگین معاملہ یہ ہے میرے اپنے سواد کے لیے، چاہے میں نون لیگ کو سپورٹ کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کو کر رہا ہوں یا پیپلز پارٹی کو کر رہا ہوں، تو کل تک تو میرے لیے افواج پاکستان میرے ماتھے کا جھومر تھی اور آج میری سب سے ناپسندیدہ کیوں ہو گئی ہے بھائی؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا نا. اور جب آپ ایک کوئی چیز لکھتے ہیں اپنی اداروں کے خلاف، چلے میں افواج پاکستان کا نام نہیں لیتا، اداروں کے خلاف آپ کچھ لکھتے ہیں اور جو آپ کے دشمن ملک ہیں نا، اور وہاں پر جو ٹولز ان کے ہیں سوشل میڈیا، وہ اسے وائرل کر رہے ہوتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ پھر کہاں پر تقدس رہ گیا آپ کے مقدس اداروں کا، آپ کے پارلیمان؟ یہاں پر میں سوری بات میری لمبی ہو رہی ہے، ایک شخص اکثر سوشل میڈیا پر آپ نے پوسٹ دیکھی ہوگی، پارلیمانی کیفیٹیریا میں جی ₹1 کی روٹی، 10 روپے کی چکن، اور میں انہیں نیچے وضاحتیں دیکھ تھک گیا ہوں. یار ایک دفعہ اس پارلیمانی کیفیٹیریا میں آ کے کھاؤ، چلیں آپ، ہم کھاتے ہیں، بل ہمارا آپ دے دیجیے گا تو آپ کو لگ پتہ چلے گا کہ وہاں پر روٹی کتنے کی. آپ ایک چائے پیتے ہیں تو 350 کی وہ چائے ہے. بالکل یہ وہ ڈس انفارمیشن ہے جو کہ آپ کے اداروں کو بے توقیر کرتی ہے. آپ کے چیف جسٹس صاحب ہیں یار، وہ عدل کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے ہوئے، ان کے فیصلوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، بالکل جب وہ فیصلہ کریں وہ کرے تنقید. آپ فیملی تک کیوں جاتے ہیں؟ اور یہ دہشت گردی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور اس کے اوپر بالکل بین ہونا چاہیے. اور پھر ہمارے تو لولے لنگڑے ادارے ہیں نا، بڑی کھل کے ذرا میں بات کرتا ہوں، بالکل کوئی خوف نہیں ہے، بلا خوف و خطر میں یہ بات کرتا ہوں. لولی لنگڑی میری ایف آئی اے نہ ہوتی نا، میری پولیس نہ ہوتی، میری عدلیہ نہ ہوتی، تو یہ دہشت گرد اتنے مضبوط ہو ہی نہیں سکتے. لیکن اب جیسے ہر ایک ادارے کے لیے، ہر ایک چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ادارے کی ضرورت ہے، تو ڈیجیٹل اتھارٹی پلیٹ فارم ضروری ہے اور اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. قریشی صاحب، آپ تو سیریس بات کو بھی دیکھتے ہیں، طنز و مزاح میں بھی اس کو آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یہ کتنا ضروری تھا؟ کیونکہ ہماری جو اس وقت نوجوان نسل ہے میرے خیال سے سب سے زیادہ وہ اس میں ملوث ہوتی جا رہی ہے اور اس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا کرائم کر رہی ہے ایک سیلف، کیونکہ ان کی براٹ اپ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ اس کو بالکل لائٹر ویٹ میں سمجھ کے ایک پوسٹ کر دیتے ہیں. لیکن جیسے کہ چودھری صاحب نے بتایا کہ جو دشمن ممالک ہیں وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس کی روک تھام بہت حد تک ضروری ہے. مائک
मैं आप भी माफी काबिज चाहता होते जा रहे हैं चौधरी देखिए साहब। आप मुझे कहते हैं मैं संजीदा रहूं तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन चलें हो जाता हूँ संजीदा। अपना हक छीन लिया उन्होंने। हाँ, देख लीजिए इतने ये डिजिटल मीडिया का दौर है, छीन भी सकता है बंदा हाथ अपना, लेकिन एक चौथी शख्सियत है, बड़ी जेरे लब मुस्कुरा रही है। चौथी शख्सियत तो खामोशी से हमारे नदीम चौधरी साहब चिप्स खा रहे हैं और हमें देख रहे हैं, और सबसे बड़ा जुल्म ये हो रहा है कि चाय सामने रख कर अब मुझे संजीदा रहने देना चाहती हैं। लेकिन चले मैं आता हूँ मौजू की तरफ, छोड़ें आज मैं थोड़ा संजीदा हो जाता हूँ। आपने चौधरी साहब ने बड़ी जामे बात की है, ठीक है, उस पर मेरी बात मैं थोड़ी सी इसमें ऐड कर दूंगा, उसे मैं डिनाई नहीं करूँगा क्योंकि बिल्कुल दुरुस्त का है। और दूसरा जो आपने बात की है दहशतगर्द जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, सबसे पहली बात यह है, इसके ऊपर हम आते हैं डिजिटल अथॉरिटी की जो आप बात कर रहे हैं, बनाई जाए, दुरुस्त है, अच्छी बात है, लेकिन बनाने का मकसद तो इदारे बनाए, साइबर क्राइम भी बनाया गया है, वो आप जानते हैं कि पीका है और पिकअप नहीं, उससे पहले जो चल रहे हैं कितना काम हुआ है। मुझे आपको एक काम बता दें, वहाँ पर जाएं, मैं ज़ाती इसका गवाह भी हूँ कि एक मसाइल पे कोई जाते हैं लोग तो आगे से कहानी वो बताते हैं तो वो दूसरी निकली हुई होती है। खातून की वीडियो का भी था सिलसिला, मैंने उसमें हेल्प भी की थी उनकी, तो आगे सबको मालूम था वो क्या कहानी है, उनको खामोश करा दिया गया, वो मसला नहीं कर सकी, वो भी हर मुल्क से बाहर जा चुकी है। इसके अलावा ये जो आप डिजिटल अथॉरिटी की बार बार जो बात कर रहे हैं, ये काम क्या करेगी? इससे काम लेना ज़रूरी है, और काम लेने के लिए आपको वो लोग चाहिए जो काम को समझते हों। जैसे अब देखें, हर कोई माइक उठा के शुरू हो जाता है। अब हमें पता है, हम लोगों ने जो 20-22 साल इस फील्ड में गुजारे हैं, हमने ऐसे गुजारे नहीं हैं। हमने जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं मार खाना, बिल्कुल हमने वो ऐसी मार खाई, हमें बताया जाता था खबर कैसे लिखनी है। मैं अपना बताता हूँ, एक दफ़ा मैं लफ्ज़ में लिखना चाहता था कि दही भले काम कर गए, तो मेरे एडिटर साहब ने मुझे डांटा, कहते तुझे तमीज़ है, ये क्या लफ्ज़ है इस्तेमाल कर रहा है। हमें ऐसे तनबीह की जाती थी, आपने बोलना जो आजकल इसको बोलने पे आ जाता है, हमने लिखना क्या है, हमारे अल्फाज क्या होने चाहिए। अब तो जो माइक पकड़ा है, ओ तू इधर आओ, गालम गलोच आप देख लें। बिल्कुल। मैं कुछ देखता हूँ, कुछ मुजरिमों से बात हो रही होती है यूट्यूब के लिए, वो 2-4 खातून एंकर्स हैं, पुलिस बनी वो होती खुद हैं, पुलिस, वो खुद ही तफ्तीशी जज बनी बनी होती है है, और खुद ही तफ्तीशी बनी हुई फैसला है। दे रही हैं। ये देखें, आप इस चीज़ को लगाम देना है, इखलाकियात अथॉरिटी बनाने से नहीं होता, आप इखलाकियात बनाएं। सर मैं ऐड सीखें। करता हूँ आपकी इस बात से जो आपने पहले बात की है। आज वो एक पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी केपी हाउस में। अच्छा, वहाँ पर हमारे दोस्त लड़ पड़े सवाल के ऊपर। देखिए, अच्छा, मुझे बड़ा गुस्सा उस पर आया है यार। हम लोग जो पार्लियामेंट कवर करते हैं या हम एक अरसे से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यार, पहले 5 साल तो मैंने कोई सवाल ही नहीं किया। बिलीव करें, जर्नलिज्म में पहले 5 साल तक मैंने कोई सवाल ही नहीं किया था। तो मैं उन्हें वहाँ पर पढ़ गया, मैंने कहा यार कुछ एडिकेट्स हैं आपको, पहले अपना हाउस तो इन ऑर्डर करें। जब बिल्कुल। एक साफी खड़ा हो गया सवाल के लिए, वो कर रहा है, तो दूसरे को उसमें मुदाखलत की अलीमिया है। ये है बिल्कुल। हमें ये भी देखना होगा। और जो इन्होंने अथॉरिटी वाली बात की ना, देखें रूल्स ऑफ बिजनेस आपको बनाने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आप बनाने के बाद सर अमल भी। अमल। आपको असगर चौधरी की शक्ल पसंद नहीं है, तो आपने कहा जी चूंकि इसने फलाना वीलाग कर दिया था, भाई उस वीलाग को देखें कि उसका मकसद क्या था करने का। हम जो काम कर रहे होते हैं ना, हम आपकी आंखें खोलने के लिए ये काम कर रहे होते हैं। जो आपको नजर नहीं आ रहा होता है वो हमें नजर आ रहा और होता हम माइक उठा के शुरू नहीं हो जाते, जी लेकिन बिल्कुल। तहकीक करके शुरू होते इससे हैं। देखें, तहकीक अब करके। सोशल मीडिया से जो जेन्युइन सहाफ़ी थे, जर्नलिस्ट थे, उनको एक बहुत बड़ा नुकसान का सामना है। वो एक अलग प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि हम सहाफ़ी बरादरी भी किस मुश्किलात से गुजर रहे हैं, क्योंकि लोग अब हमें उतना संजीदा नहीं लेते हमारी बात को भी। जिस तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म मिला है, सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए लोग जो है वो इस तरह की गिरी हरकतें कर रहे हैं, बहुत सिर्फ गिरी अपना ज़ाती मुफाद देख रहे हैं। बाहैसियत कौम हमें कितनी तरबियत की ज़रूरत है। और वही बात आ जाती है कि सिर्फ क्या एक इदारा बनाने से हम ये जो तूफ़ान बदतमीज़ी है इसको कंट्रोल कर सकेंगे। और शायद इसमें कुछ सियासी जमातों का भी हाथ है कि उन्होंने अपना जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको मिसयूज़ किया। आप क्या कहते हैं चौधरी देख, साहब? मैं सबसे बड़ी खबर आज आपकी बताऊं, जो ये पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर आज जो छापा पड़ा है उसमें विश्वास किया था हाँ, कि कहा ये जा रहा है कि पीटीआई का जो ऑफिशियल अकाउंट था वहाँ से आर्मी चीफ के अगेंस्ट कोई पोस्ट हुई। क्योंकि मैंने ये देखी नहीं है, ये कहा जा रहा है शहर में ये बातें ज़ेर गर्दिश है। अब एक सियासी पार्टी, यार शायद हमें इसके ऊपर गालियां भी पड़े, हम जो सब जरा तैयार लेकिन रहिएगा। बात तो दुरुस्त करेंगे वैसे ना हमारा साहब। प्लेटफॉर्म जो है उस पर सबसे ज्यादा पीटीआई को कवरेज मिल रही है, ये भी ऑन रिकॉर्ड में बता दें। ऐसे ही है सर बात ये फौज इंडिया की फौज है, ये मेरी फौज है ना। आपका भाई बेटा है, आपका भाई बेटा ऐसे है, हम में मेरा से ही भाई है, बेटा जी। है, हम में से ही है। हम में से। और हम बेतुके शुरू हो जाते हैं।
मैंने पहले कहा ना कि जब बिना तहकीक के। यस इमरान खान साहब का दौर था, तो जब हम फौज के किसी किरदार के ऊपर बात करते थे तो हमें कहा जाता था ये गद्दार है। आज मैं उन लोगों से ये बार बार सवाल करता हूँ, यार कल तक तो आप हमें गद्दार करार दे रहे थे, आज आपको फौज गद्दार नजर आ रही है। और वो कुछ आपका और उनकी जमात के बहुत सारे लोगों ने अब पार्टी छोड़ने के बाद भी ये वाजिया किया है कि पहले उनका बयानिया बिल्कुल मुख्तलिफ था और अब बिल्कुल मुख्तलिफ एक है। पिंडी के एमपी ने भी और बाकायदा ये इस पे भी बात की है। देखें बाकायदा ये भी बात है, डिजिटल क्या प्लेटफॉर्म को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। मैं नाम ले लेती हूँ, फवाद चौधरी साहब ने जब जलसे होते हैं या सोशल मीडिया पे कंपेन होती है तो कहते हैं हम किसी के बाप से माफ़ी नहीं मांगेंगे, और फिर एक ही प्रोग्राम में जाकर उनका मैं जान दिया हाथ जोड़ ले भाई, मैं अड्डे जोड़ानी है। तो फिर आप अपनी यूथ को गलत मोटिवेट कर रहे हैं और खिलाफ कर रहे हैं। बिल्कुल शहबाज गिल ने क्या कहा था, मैं बड़ा माड़ा बंदा हूँ, रोते हुए उसने ये कहा था ना। सांस फूलती थी। आप जो जहर आप दिखाते कुछ और हैं और आप अपने लिए कुछ और, आप अपनी नौजवान है नस्ल को को आपको अगेंस्ट कुछ कर नजर आते हैं, कुछ ये इनके ऊपर बिल्कुल जो है ना दुरुस्त। तो ये बड़ा अच्छा आपने मौजूद लिया है। देखें ये इसे हम जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे, हम सबसे बड़े अलमबरदार हैं मीडिया की आज़ादी के। 3 दिन पहले गुजरांवाला के अंदर अपोजिशन लीडर को रोकने की कोशिश की गई। बिल्कुल नदीम शोईब साहब गवाह हैं इस बात के कि हम जुलसा देने वाली गर्मी में उस तपती सड़क के ऊपर थे, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि हम आज़ादी सहाफ़त के आज़ादी हम अपने सीनियर्स को कैसे बोलेंगे। चौधरी साहब नासिर जैदी साहब ने जितने कोड़े खाए हैं जी बिल्कुल इसी सहाफ़ियों ने सहाफत खाए के हैं ना। लिए, सहाफ़ियों के लिए आज हमारे ये दिन आ गए कि इस तरह का जाफरी साहब हैं, प्लेटफॉर्म हाशमी साहब आके हैं। झूठी और झूठ पे मबनी खबरें करके और हमारे सारे इदारों को जो है ना वो बीच में ट्रैप में ला रहे हैं। तो आप अपने शोबे के लिए जो है इस पे स्टैंड लेना लाजमी है। वक्त की कमी है। जाते जाते कुरैशी साहब आपसे मैं चाहूँगी कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे और असगर साहब आप क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी सबसे पहला मेरा पैगाम ये कि झूठी खबरें फैलाना छोड़ दें और बाज़ाते खुद आप तहकीक करें, उसके ऊपर आप व्लॉग बनाएं या वीडियो बनाएं, जो बनाना चाहता है, फिर आप सहाफ़ी कहलाएंगे। आप माइक पकड़ के इसे कहते हैं अन्य आवाज़ ना शुरू हो जाए, अन्य आवाज़ शुरू होना छोड़ दें और बाज़ाते खुद तहकीक करें, तो आपके व्लॉग भी कामयाब होंगे और आप एक ज़िम्मेदार शहरी और फिर आप अपने आप को सहाफ़ी कहलाने के हकदार होंगे और हम तस्लीम करेंगे कि आप सहाफ़ी हैं जी और कोशिश करें सहाफ़ी बने। शुक्रिया। चौधरी साहब देखें आप जो ये सहाफ़त है ये पैगामराना पेशा है और इतना मुक़द्दस ये पेशा है कि जो कलम ये आपको अता हुआ है ये रब करीम की ये अमानत है और आपका एक एक लफ्ज़ एक एक जुमला वो सच्चाई पर होना चाहिए और उसकी आपको ऑनरशिप लेनी पड़ती है। मैं फिर दोबारा नदीम शोईब साहब का हवाला दूंगा कि पिछले दिनों भी इन्हें करोड़ों रुपए के कर जाने का नोटिस आया और इन्होंने उस शख्स को सबूतों समेत कटहरे में खड़ा कर दिया। मुझे एक 2.9 मिलियन का नोटिस आया था, मैंने नदीम शोईब साहब से भी डिस्कस किया था और तीसरे दिन वो मौसूफ आए थे, एक बड़े अदारे के सरबराह थे और वो उन्होंने ऑफिस में आके माफ़ी मांगी थी कि जी गलती हमारी है। साफ़ी जो होता है वो तहकीक के साथ देता है और आप खुदारा इसलिए वो स्टैंड ले पाते हैं। साफ़ी ना बने साफ़ी बने। और चौधरी साहब उसमें यही बात है कि मल्ले दी फपे कुटनी ना बनो, मतलब इधर उधर दी खबरें लेके ना चलो, मतलब प्रॉपर जिन्होंने मेहनत की है, डिग्री लिए, पढ़े हैं। अब हमें खुद शर्मिंदगी होती है कि जो सबसे वेला बंदा है वो बाइक पे भी प्रेस लिखवा रहा है, वो दुकानों में भी प्रेस लिखवा रहा है। तो सहाफ़त का खुदारा मजाक ना उड़ाएं, ये बड़ी अहम जिम्मेदारी है और चौथा सतून है हमारे मुल्क का, इसलिए इसमें अपना किरदार अदा करें, लेकिन बेहतर किरदार अदा करें। आपसे फिर बैठक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए असमा नवाज़ को दीजिए इजाज़त, क्योंकि मेरे दोस्तों से अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चाय